رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ سخت سیکیورٹی اور کڑے انتظامات کے ساتھ سی ایم سدرامیا کی گلبرگہ شہر میں ہوئی آمد اور نئے جے دیوا ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب کا کیا گیا آغاز۔ نئے جے دیوا ہارٹ ہاسپٹل کے افتتاحی تقریب کے موقع پر آج اچانک کچھ کانگریس لیڈرز نے اس ہاسپٹل کے سامنے کیا احتجاج۔ گلبرگہ شہر میں پریانک کھرگے کے ہاتھوں کلبرگی روٹی کی انوگریشن سیریمنی اعلیٰ حکام کی موجودگی میں عمل میں آئی۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے کتوں کی دہشت اور بربریت کے سنسنی خیز حادثات آئے سامنے۔ گلبرگہ شہر میں وکیلوں ایڈوکیٹس کی ٹیم نے امت شاہ کے خلاف ڈی سی آفس کے سامنے کیا کڑا احتجاجی مظاہرہ۔ گلبرگہ شہر کے کے بی این ریسیڈنسی میں منعقدہ میٹنگ سے بات کرتے ہوئے پولیٹیکل لیڈر، سماجی سیاسی قائدین نے امت شاہ کے خلاف گلبرگہ شہر کی تمام عوام کو 24 دسمبر کے دن گلبرگہ بند رکھتے ہوئے پیسفل پروٹیسٹ میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی سبھی عوام سے کی گزارش۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر میں کرناٹکا سی ایم سدرامیا کی آمد کے ساتھ ہی نئے جے دیوا ہارٹ ہاسپٹل کے افتتاحی تقریب کی تیاریاں اور بھی زور و شوروں سے کی گئی۔ جی ناظرین، پورے زور و شوروں سے اور کڑی سیکیورٹی کے ساتھ اس ہاسپٹل کی انوگریشن سیریمنی عمل میں لائی گئی اور اسی کے پس منظر میں گلبرگہ کمشنر آف پولیس ڈاکٹر شرنپا ایس ڈی آئی پی ایس اور ان کا پولیس عملہ ڈیوٹی پر تعینات سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر اہم جانکاریوں کو انسٹرکشنز کو دیتا ہوا دکھائی دیا۔ دیا جائے کہ اسی پس منظر میں ایس ڈی شرنپا آئی پی ایس اپنی پولیس ٹیم کے ساتھ کرناٹکا ہائی کورٹ کے موبائل بنچ کا دورہ کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے احاطے کا معائنہ کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سبھی پولیس افسران کو سیکیورٹی کے پیش نظر اہم جانکاریاں اور ہدایت دیتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ بتا دیا جائے کہ کلیان کرناٹکا ریجن کے تمام عوام کے لیے کے آر ڈی بی اور ریاستی حکومت کی جانب سے اس نئے جے دیوا ہارٹ ہاسپٹل کا کھلنا ایک بڑا ہی ہسٹوریکل، تاریخی اور ضروری قدم ہے، جس سے بی پی ایل کیٹیگری عام عوام کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ ساتھ ہی وہ پرائیویٹ ہارٹ ہاسپٹل جو کہ یہاں کی عوام کے علاج کے چلتے موٹے موٹے بلز بنایا کرتے، اس ہاسپٹل کے کھل جانے سے ان کے بزنس اور پیشنٹس میں کمی ہو جائے گی۔ بتا دیا جائے کہ پرائیویٹ کارپوریٹ ہاسپٹل سے آگے نکلنے والی معیاری سروس یہاں عوام کے لیے دستیاب رہے گی اور اس نئے ہاسپٹل کے استعداد کے مطابق موجودہ 10 کارڈیولوجسٹ کے علاوہ محکمہ خزانہ نے 21 ڈاکٹرز، 150 سٹاف نرسز اور دیگر عملہ بھرتی کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے اور اس بھرتی کا عمل اسی کے مطابق کیا جائے گا۔ ناظرین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس نئے جے دیوا ہاسپٹل میں 3 کیتھ لیبز، 3 آپریشن تھیٹر اور ایک ہائیبریڈ او ٹی ہوگا اور ایکس رے، ای ایم آر آئی، بلڈ بینک کی خدمات بھی یہاں عوام کے لیے دستیاب رہے گی۔ کل ملا کر 302 کروڑ کی لاگت کے ساتھ قائم کیے گئے اس نئے ہاسپٹل میں 371 بیڈز، جس میں 105 آئی سی یو بیڈز، 120 جنرل بیڈز کے ساتھ عوام کے لیے اور بھی بستر کی گنجائش رہے گی، جس میں 2120 بیڈز یعنی کہ 2120 بستر شامل ہیں۔ یہ تمام سہولیات اور علاج بی پی ایل کے مریضوں کے لیے پوری طرح سے مفت رہے گا اور اے پی ایل کے مریضوں کے لیے فیس میں 30% کی رعایت رکھی جائے گی۔ ناظرین کو اس ہاسپٹل کے بارے میں بتا دیا جائے کہ بنگلور، میسور کے بعد اب یہ تیسری بہترین عمارت گلبرگہ شہر میں عوام کی بہتری کے لیے ہر طرح کے علاج کے لیے دستیاب رہے گی، جس کا مقصد بنگلور کے بعد اب گلبرگہ میں بھی ویسکولر سرجری کی خدمات عوام کو فراہم کرنا ہے۔ یہ بہترین فلاحی کام بڑا ہی تاریخی قدم ہے جو کہ یہاں کی عوام کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ بتا دیا جائے کہ اس نئے ہاسپٹل میں پانی کی قلت سے بچنے کے لیے 7 لاکھ لیٹر کے ٹینکس قائم کیے گئے ہیں اور پاور سٹیشنز کو 33 kV تک اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اس نئے جے دیوا ہارٹ ہاسپٹل کی خصوصیات اور کی فیچرز آپ کو بتا دیے جائیں کہ اس ہاسپٹل میں 371 بیڈز، 3 کیتھ لیب، 3 آپریشن تھیٹرز، ایک ہائیبریڈ او ٹی، 105 آئی سی سی یو، 120 جنرل وارڈ بیڈز، سیمی اسپیشل اور ڈیلکس وارڈ بیڈز، 12 ریکوری اور 12 پوسٹ آپریٹیو بیڈز،
साथ ही कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, 128 स्लाइस सीटी स्कैन, 1.5T MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी, हाई टी पैथोलॉजी और ब्लड बैंक की खिदमत आवाम के लिए बड़े ही शानदार अंदाज में यहाँ अवेलेबल रहेगी, दस्तयाब रहेगी, जिससे यहाँ की आवाम पूरा फायदा उठा सकती है। बता दिया जाए कि आज इतवार सुबह 11:40 पर सीएम सिद्धरमैया बैंगलोर शहर से खुसूसी परवास के जरिए गुलबर्गा हवाई अड्डे पहुंचे और फिर आज दोपहर गुलबर्गा शहर के SM पंडित थिएटर के सामने कल्याण कर्नाटका रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के जेर एहतमाम 371 बेड्स पर मुश्तमिल नए जयदेवा कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का सीएम सिद्धरमैया ने इफ्तिताह किया और फिर शाम के 4:20 पर खुसूसी परवास के जरिए वो बैंगलोर वापस लौटे। लेकिन अब साथ ही अवाम को इसी के मुतालिक एक और अहम जानकारी फराहम कर दी जाए कि ये बेहतरीन और तारीखी कदम जो कि यहाँ की अवाम की भलाई के लिए, कल्याण कर्नाटका रीजन की भलाई के लिए उठाया गया है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत करते वक्त इनॉग्रेशन सेरेमनी में गुलबर्गा शहर के 55 वार्ड्स के कॉरपोरेटर्स को नहीं बुलाया गया, जबकि यहाँ की हुकूमत ये बेहतर तरीके से जानती है कि यहाँ के कॉरपोरेटर्स को इस कदम में शामिल करना, इसके बारे में जानकारी फराहम करना बड़ा ही अहम और जरूरी है। कॉरपोरेटर्स का साथ मतलब हर कॉरपोरेटर्स की वार्ड्स की आवाम का साथ और आवाम के साथ जुड़ना है, जिसको हुकूमत ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लिहाजा इस अहम मुद्दे और बात को बताते हुए जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए प्रियांक खरगे और गुलबर्गा डीसी से कई सारे सवालात किए। उन्होंने पूछा कि इस तारीखी हॉस्पिटल के नए जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन सेरेमनी में आखिर यहाँ के 55 वार्ड्स के कॉरपोरेटर्स को क्यों नहीं बुलाया गया, इसके पीछे क्या वजह है। के साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि यहाँ की मीडिया को, रिपोर्टर्स को भी इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन सेरेमनी में मदऊ नहीं किया गया, जिसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई। नाजरीन को एक और अहम जानकारी इसी के मुतालिक फराहम की जाती है कि इस नए जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन सेरेमनी के वक्त सीएम सिद्धरमैया की आमद की खबर के चलते गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल को नजरअंदाज करते हुए उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई और इसी बात पर इस हॉस्पिटल के सामने इसके पास ही आज कुछ कांग्रेस लीडर्स ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी हां, इस नए जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन सेरेमनी के प्रोग्राम में गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल की तस्वीर ना लगाए जाने की बात को लेकर कुछ कांग्रेस सपोर्टर्स, कांग्रेस लीडर्स ने जयदेवा हार्ट हॉस्पिटल के सामने आज प्रोटेस्ट किया और कहा कि अल्लम प्रभु पाटिल को यहां क्यों नजरअंदाज किया गया, जबकि ये हॉस्पिटल साउथ रीजन में आता है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की गुलबर्गा शहर में आमद और मौजूदगी के चलते हाल ही में उन्होंने गुलबर्गा डीसी और गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल के साथ मिलकर कलबुर्गी रोटी सेंटर का इफ्तिताह किया। जी हां, प्रियांक खरगे के हाथों होटल सप्तगिरी स्वाद में इस कलबुर्गी रोटी का इनॉग्रेशन किया गया। इसकी शुरुआत की गई, जिसमें लजीज और किस्म किस्म की रोटियां और चटनियां यहाँ की आवाम के लिए कम दामों में दस्तयाब रहेंगी, जिसको आवाम इसकी वेबसाइट के जरिए से भी मंगवा सकती है या फिर इस होटल के फ्रेंचाइजी से राब्ता करके भी इन रोटियों को हासिल करके इसका मजा उठाया जा सकता है। बता दिया जाए कि ये अच्छे अंदाज में पैक्ड और पूरी सफाई के साथ बनाई गई कॉम्बो साइज रोटियां आवाम का, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं, जिसकी वजह से इसके एक दिन का सेल में 2000 तक पैक्स बेचे जा रहे हैं। लिहाजा इसकी यही पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रियांक खरगे ने कहा कि इस कलबुर्गी रोटी को एक्सपैंड करते हुए धीरे धीरे और भी दूसरे सिटीज में साइट्स के जरिए से इसे बेचे जाने की शुरुआत की जाएगी। गुलबर्गा शहर और आसपास के इलाकों एरियाज में फिर से आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। उनकी दहशत, बर्बरियत और वहशीपन के कई सारे बच्चे शिकार हुए, जिसके बाद इन बच्चों को जिम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। जी हां, जेवर्गी कॉलोनी के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 में सुन्नी नगर के बिल्कुल करीब वैष्णवी देवी टेम्पल के पास 4 बच्चों पर कुत्तों की टोली ने बुरी तरह से हमला किया और उन्हें बड़े ही खतरनाक तरीके से काटा, जिसके फौरी बाद इन बच्चों को जिम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। बता दिया जाए कि 10 साला अक्षत, 11 साला मनोज, 4 साला खुशी और 7 साला अद्विका को सड़क पर घूमते फिर रहे आवारा कुत्तों ने बड़ी ही बेदर्दी से काटा, लेकिन गुलबर्गा कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट आज भी
खामोशी की चादर में लिपटा गफलत की नींद में सोया पड़ा हुआ है। कलबुर्गी महानगर पालिका खामोश तमाशाई बना बैठा हुआ है, चुप्पी साधे हुए है। जबकि कई वक्त पहले केएमपी ऑफिशियल्स ने ये बताया था कि इसी के मुतालिक टेंडर दिया गया है और बहुत जल्द इस शहर के कुत्तों का सफाया किया जाएगा, उन्हें पकड़कर शहर से दूर किया जाएगा। लेकिन आज तक भी ये नहीं किया गया और लगातार यहाँ पर कुत्तों का आवाम को और बच्चों को काटने का सिलसिला जारी है। लिहाजा ऐसे हालात में प्रियांक खरगे और गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम को अहम कदम उठाते हुए केएमपी ऑफिशियल्स पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और अपने शहर से जल्द इन आवारा कुत्तों का सफाया करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर पर पार्लियामेंट में दिए गए अमित शाह के बयान पर गुलबर्गा शहर के एडवोकेट्स की टीम बड़ी गुस्साई और नाराज है, जिसके चलते गुलबर्गा शहर के तमाम वकीलों एडवोकेट्स ने मिलकर गुलबर्गा डीसी ऑफिस के सामने कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुलबर्गा शहर के कई सारे नामचीन और मशहूर वकीलों को भी इस प्रोटेस्ट में अमित शाह के बयान पर कड़े अंदाज में मजम्मत करते हुए देखा गया। यहां पर वकीलों एडवोकेट्स की गुस्साई हुई टीम ने अमित शाह से कहा कि आईन मुअम्मर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने अपने हिंदुस्तान मुल्क का कानून बनाया, सभी मजहब के लोगों, हर कम्युनिटी को, हर इंसान को मसावी हुकूक देने के राइट्स दिए। इन्होंने इंसानियत मजहब को अपने कानून के जरिए सबसे ऊपर रखा। उसी कानून का हलफ उठाते हुए अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हुआ। वो कैसे बाबा साहब अंबेडकर की शान में इस तरह के तौहीन आमेज अल्फाज कह सकता है? लिहाजा उसे पार्लियामेंट में बैठने का, अपने ओहदे को जारी रखने का कोई हक नहीं। अमित शाह को चाहिए कि वो अपने मुल्क की 85% अवाम जो कि बाबा साहब अंबेडकर से मोहब्बत करती है, उन तमाम से मुआफी मांगे और अपने पोस्ट से रिजाइन करे। लिहाजा बाबा साहब अंबेडकर की भरे पार्लियामेंट में की गई इसी तौहीन के खिलाफ 24 दिसंबर परसों मंगल के दिन गुलबर्गा बंद करने का ऐलान किया गया। संविधान होराटा समिति की जानिब से 24 दिसंबर मंगल को गुलबर्गा बंद रखने का ऐलान किया गया है, जिनके सपोर्ट में यहां की हर एक सियासी, समाजी, गैर सियासी, मिली तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर केबीएन रेसिडेंसी में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हुए इसमें हर एक इंसान को, हर एक शख्स को सपोर्ट करने की बात कही। दिया जाए कि 24 दिसंबर को गुलबर्गा शहर के सभी शॉप्स, दुकानों, स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेसमैन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटो ड्राइवर्स के साथ सभी दीगर लोगों को 24 दिसंबर के दिन इस गुलबर्गा बंद को सपोर्ट करने की भी अहम जानकारी सभी तक फराहम की गई। बता दिया जाए कि इस गुलबर्गा बंद के जरिए गंज के नगरेश्वर स्कूल से डीसी ऑफिस तक पूरे सुकून और पीसफुल अंदाज में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसमें गुलबर्गा शहर की तमाम अवाम से शिरकत करने की गुजारिश की गई। और इसी के मुतालिक गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर्स ने भी मुख्तलिफ दलित, एससी, एसटीज, ओबीसी, अक़लियती, सियासी और गैर सियासी तंजीमों की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में अमित शाह की तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स के खिलाफ इस एहतजाज में सभी को शामिल होने की गुजारिश की है। हैदराबाद शहर का जाना माना और मारूफ नाम RNS फार्मा गुर्दे और पित्ते के मरीजों के लिए नफा बख्श और बेहतरीन इलाज। RNS फार्मा पेश करते हैं डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन साहिबा की निगरानी में गुर्दे और पित्ते का बेहतरीन इलाज। पत्थर जल्दी न होने का मुकम्मल इलाज। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स। RNS फार्मा का खानदानी नफाबख्श इलाज का सिलसिला आज भी पूरी कामयाबी के साथ है जारी। पत्थर घुलकर होगा साफ और दवा पर भी कोई परहेजी की पाबंदी नहीं। साथ ही होम डिलीवरी अवेलेबल और यहाँ इरकान की दवाई फ्री मुफ्त दी जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए आज ही राब्ता करें। RNS फार्मा, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद। इन नंबर पर कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं 9390610436 या फिर 9703939436। मजीद देर न करें, गुर्दे और पित्ते की बीमारी से परेशान मरीज जल्दी RNS फार्मा से राब्ता करें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।